کرائسس ایک مومنٹ آف اپرچونٹی بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو اصلاحات درکار ہیں، جو معیشت کو مستقل بنیادوں پہ ٹھیک کرنے کے لیے فیصلے ہیں، وہ ہم کرنے سے نہیں چوکیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان مشکل حالات کے اندر جو غریب عوام ہیں ان کے مفاد کو پیش نظر رکھا جائے اور ان پہ کم سے کم بوجھ اس تبدیلی کا یا اسٹرکچرل ریفارم کا ان کے اوپر آئے۔ پاکستان نے 75 سالوں میں اپنی معیشت کو رینٹ سیکنگ کے اوپر اور ریئل اسٹیٹ کے پلاٹس کے اوپر چلایا ہے۔ پاکستان نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو نہیں اپنایا۔ ہم نے لہٰذا جو ہمارے پاس محدود وقت ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ملک کی معیشت کی سمت درست کر جائیں، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو ڈالر کھپانے کی معیشت بنایا ہے، ڈالر کنزیوم کرنے کی معیشت بنایا ہے، لیکن ایکسپورٹس کے ذریعے ڈالر کمانے کی معیشت نہیں بنایا۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 550 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں۔ یہ پاکستان کی بہترین کمپنیاں ہیں۔ ان میں سے صرف 74 کمپنیاں ہیں جو $10,000 سے زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ ہمارا جو بزنس سیکٹر ہے اس کی تمام تر توجہ آسان منافع پر ملک کی ڈومیسٹک مارکیٹ کے ذریعے کمائی کرنے پر ہے۔ ہمیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو، ہمارے تمام پروڈکشن کو ایکسپورٹ کی طرف موڑنا ہے۔ ہماری جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو 10-10, 20-20, 40-40, 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی کمپنیوں میں ڈھالنا ہے۔ اس کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ دوسری اہم تبدیلی جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہے۔ پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے، اور ان نوجوانوں کو جتنے بھی آئی ٹی کے سکل دیے جائیں، ان کو آئی ٹی کے ٹول دیے جائیں، یہ پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کا سرمایہ زر مبادلہ میں لا سکتے ہیں۔ تو 60,000 یوتھ انٹرنشپ کا ایک پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے، جس سے پورے ملک میں نوجوانوں کو موقع ملے گا کہ وہ آئی ٹی سکلز بھی سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جاب مارکیٹ کے لیے بھی انٹرنشپ کے ذریعے اپنی صلاحیت کو مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں، تاکہ اس سے ہم بے روزگاری کو ختم کر سکیں۔ تیسرے، ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو مزید آئی ٹی سکلز میں ٹرین کرنے کے لیے اور 1 لاکھ نوجوانوں کو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکلز دینے کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں۔
جس سے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ سکلز بہت تیزی کے ساتھ آئیں گے جس سے کہ وہ معیشت کو آگے لے کر جا سکیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ملک کے اندر بحرانی صورت ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی گھر میں آگ لگ جائے، تو جب گھر میں آگ لگے تو پھر گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پہ نہیں لڑتے کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے۔ اگر وہ اس پہ جھگڑا کریں گے کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے تو پھر وہ آگ سب کو خاکستر کر دے گی۔ جب آگ لگے تو ہر کسی کا فرض ہے کہ اپنے حصے کی بالٹی لے کر آگ بجھانے کی کوشش کرے۔ آج پاکستان میں جو دہشت گردی کی تازہ لہر آئی ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ پشاور میں ہونے والا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ پچھلے چند ماہ سے تواتر سے ہونے والے واقعات ہیں کہ جو گزشتہ حکومت کی پالیسی تھی اپیزمنٹ کی، اس کے نتیجے میں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جیسے کل وزیر اعظم نے کہا، نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت خیبر پختونخوا کو 1% وسائل 2010 سے لا اینڈ آرڈر کے لیے، چونکہ اس کے ہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی تھی، تو کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں 417 ارب روپیہ خیبر پختونخوا میں حکومتوں کو دیا گیا، اور ان 13 سالوں میں تقریباً 9 سال سے زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ لیکن سیف سٹی اسلام آباد میں ہے، سیف سٹی لاہور کے اندر شہباز شریف صاحب نے لگا دیا، لیکن پشاور جو پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے زیادہ متاثر شہر تھا، 9 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کرتے۔ اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج پشاور کا لا اینڈ آرڈر اگر والنریبل ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بن سکا۔ پشاور اور خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ایک مستقل اور مضبوط ادارے کے طور پہ اسٹیبلش نہیں کیا جا سکا، جبکہ 417 ارب روپیہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس میں سے 9 سالوں میں ملا۔ لیکن پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے بہترین کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنا دیا، جو کہ دہشت گردی کی فرنٹ لائن پہ نہیں تھا، لیکن خیبر پختونخوا جو دہشت گردی کا فرنٹ لائن صوبہ تھا، وہاں پہ کیوں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ مستقل اور مضبوط ادارے کے طور پہ نہیں بن سکا؟ کرائے کی بلڈنگز میں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اور اس سے ان کی صلاحیت جو ہے وہ دہشت گردوں کے مقابلے میں نسبتاً ویسی نہیں کہ جیسی پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اسی طرح پولیس کو محفوظ کرنے کے لیے کیوں نہیں وہ وسائل خرچ کیے گئے جو تقریباً ہر سال اوسطاً اگر آپ لگائیں تو 33-35 ارب روپیہ سالانہ 35 ارب کے قریب پی ٹی آئی کو ملتا رہا لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کرنے کے لیے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ان 9 سالوں میں اس سالانہ 35 ارب روپے کا آپ نے کیا استعمال کیا؟ اس کو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز میں بندر بانٹ کے لیے استعمال کیا، اس سے خیبر پختونخوا کو محفوظ نہیں کیا۔ اور اسی لیے آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس خیبر پختونخوا کو، جسے بڑی محنت کے ساتھ امن کا گہوارہ بنایا گیا تھا، کیوں دوبارہ دہشت گردی کی آگ میں پھینک دیا ہے؟ اور آنے والے وقت میں جب الیکشن ہوگا تو لوگ یہ سوال پی ٹی آئی کی قیادت سے کریں گے کہ آج ملک جن معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے، آج جس مہنگائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی جڑ میں وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی ہے۔
जब हम ऑपोजिशन में थे तो चीख चीख कर कहते थे कि ये मुआहदा जो हुकूमत कर रही है इसके नतीजे में जो महंगाई पैदा होगी वो कई सालों तक पाकिस्तान का पीछा करेगी। और आज हमारे वो बदतरीन खदशात हकीकत बन चुके हैं। तो लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे और पीटीआई की क़यादत का इलेक्शन में एहतसाब भी करेंगे। एहसान इकबाल साहब, ये बताएं कि आपने इतने सारे मुल्क को जो चैलेंजेस है उसका जिक्र किया, इतने बड़े चैलेंजेस है। दूसरा, बकौल पुलिस के आप शराबियों को पकड़ते फिर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जी शेख रशीद शराब के नशे में था। शेख रशीद की गिरफ्तारी से आपका मसला हल हो जाएगा? नहीं, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किसी नशे की बुनियाद पे नहीं किया गया। पुलिस का स्टेटमेंट है ऐसी नहीं है। उनके खिलाफ नशे के चार्जेस नहीं हैं। उनके खिलाफ और पीटीआई के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर एनार्की पैदा करने के लिए हमारे इदारों के खिलाफ ऐसे बयानात दे रहे हैं जो कि हाइब्रिड वॉर के अंदर दुश्मन का एक आला होता है। किसी मुल्क के अंदर दाखिली इंतशार पैदा करने के लिए उसके शहरियों और उसके इदारों के दरमियान राब्ते को और एतमाद को ख़त्म कर दिया जाए और इदारों को बेतौकीर कर दिया जाए तो फिर उस मुल्क में एनार्की पैदा हो जाती है। फवाद चौधरी को भी हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा कायम किया था। चूँकि हर वो इदारा जो पीटीआई की चोरी पकड़ता है ये उस इदारे के खिलाफ न सिर्फ ये कि किरदार कुशी शुरू कर देते हैं बल्कि उसके और आवाम के दरमियान जंग करवाने की कोशिश करते हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस तरह किसी जमात ने मुजाहरे किए हों जैसे पीटीआई ने किए हैं। कभी हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे आईनी इदारों के खिलाफ इस तरह की हर्जा सराई किसी जमात ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देख रही थी या हम मुशर्रफ का मार्शल लॉ देख रहे थे या एआरडी की जद्दोजहद कर रहे थे, कभी इदारे जाती एनार्की फैलाने के लिए किसी जमात ने इतनी मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चलाई जितनी आज पीटीआई पाकिस्तान के अंदर एक इदारा जाती बहरान और इदारा जाती तबाही फैलाने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। ना मुल्क का मफाद देखती है। अगर सैलाब आता है तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे कैंपेन करती है कि पाकिस्तान की मदद ना करें। अगर आईएमएफ के साथ हम मुआहदा करने लगते हैं तो ये उसको सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा पीटीआई उस लाइन को बार बार क्रॉस करती है कि जिसे सियासत और रियासत के दरमियान एक फ़र्क कहा जाता है। तो आप सियासत में हमें गाली निकालें, हमें जेल में डाला। मैंने तो इमरान खान पे मुकदमा नहीं किया कि मुझे क्यों नाजायज़ जेल के अंदर रखा, लेकिन अगर कोई रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान में आइन है, कानून है, वो ज़रूर अपना रास्ता लेगा। कराची के अंदर जितने भी वफाकी मंसूबे शुरू होते हैं, हमने माजी में भी देखा है कि एक तो प्लानिंग बहुत देर से होती है। ग्रीन लाइन का ही सिर्फ मंसूबा देख लें तो आधा बना हुआ है, आधा पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं पूरा सवाल कर लें। इसके अलावा जो वफाक वैसे ही फंड्स दे रही थी, पीटीआई की हुकूमत में भी हमने देखा कराची को नज़रअंदाज किया गया। आपकी इससे पहले हुकूमत थी, उसमें थोड़ा कुछ प्लानिंग तो हुई थी, लेकिन अब आप लोग जब आ चुके हैं तो उस वक्त भी कराची के मंसूबे इतने खास कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रहे। कराची वालों ने हमें एक सीट नहीं दी, लेकिन हमने ग्रीन लाइन का 25 अरब का तोहफा दे दिया। सुन लें, सुन 8 यूसी से जीत हासिल हुई है, अभी हुई है ना, शरीफ साहब 2018 लेकिन हम कराची को पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल समझते हैं। तो कराची से हमें कोई सीट मिले या ना मिले, हमारा फर्ज है कि हम कराची की खिदमत करें। और ये वही कराची है जहां 2013 में जब कोई मर्द घर से निकलता था तो उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहन मुसल्ले पे बैठ के दुआ किया करती थी कि ये शाम को
वापस आ जाए। आज भी ऐसे ही। लेकिन हमने कराची में अमन कायम करके दिखाया, हमने कराची की रोशनियों को बहाल किया। बदकिस्मती से पिछले 4 सालों में जो सिक्योरिटी के इदारे थे उन्हें दहशतगर्दी के महाज से उठा के ऑपोजिशन के खिलाफ लगा दिया गया, जिसके नतीजे में जो दहशतगर्द नेटवर्क्स थे, जो माफियाज थे, उन्हें दोबारा सिर उठाने का मौका मिला। लेकिन इंशाल्लाह इन अनासर की फिर सरकोबी करेंगे, और अगर कराची में भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो उसको ठीक करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत पूरा किरदार अदा करे। आपने कराची से एक सीट नहीं मिली, लेकिन ये वही कराची है जो 70% रेवेन्यू लेता है, तो आपकी हुकूमत नहीं, मैं तो मुल्क चलता है। मेरे भाई, मैं आपको सिर्फ ये देखिए, मैंने आपको मेरी जान मेरा ये मकसद नहीं था। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, आपने मेरी बात सुन ले मेरे भाई, सुन तो लेना। नहीं प्लीज मेरे मुंह में गलत बात ना डालें। मैंने उसके लेकिन हमने उसके बावजूद इसलिए, और आप अगली बात सुन लेना, तमाम पैसे देता है। मैंने ये कहा कि हमें एक सीट नहीं मिली, इसके बावजूद हमने ग्रीन लाइन इसलिए दी कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। आपने आधी बात पकड़ ली और अगली बात जो है उसको छोड़ दिया। और बराए मेहरबानी जब टिकर देंगे तो मेरी पूरी बात का टिकर दीजिएगा, आधी बात का टिकर ना दीजिएगा। ये बताइएगा इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये आप बताइएगा कि कराची नहीं बनाया गया, इसलिए वो वनरेबल है। तो सिंध हुकूमत भी जो है इसको कराची को सेंसिटिव नहीं बना सकी। 15 साल से आप हुकूमत कर रही है, आपने सिंध हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहा, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? दूसरा, मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा कि इलेक्शन करवाएं वरना जमहूरियत को बहाल करने के लिए रोएंगे, तो क्या आप इत्तफाक करते हैं? तीसरा ये कि आप जमहूरियत डिरेल करने वाले बादल मंडलाते हुए नजर नहीं आ रही? कौन नहीं नजर आ रहा? जमहूरियत नहीं, पाकिस्तान, देखिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल करने का वक्त गुजर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह का साल है, और हमने इतने तजुर्बे कर लिए हैं, पाकिस्तान को इतने तजुर्बात से गुजारा गया है कि इसमें अब मज़ीद तजुर्बे की सकत नहीं है। और जो भी पाकिस्तान को आइन और जमहूरियत के रास्ते से पटड़ी से उतारेगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं होगा, पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन होगा। और अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी ये बात कह चुकी है कि हम सियासी अमल से दूर रहना चाहते हैं। पाकिस्तान की अदलिया भी, मुझे यकीन है कि अपने फैसलों की रोशनी में ज़रूर इस बात का जायज़ा लेगी कि माजी में अदालती फैसलों ने पाकिस्तान को किस हाल पे पहुंचाया है। 2017 में नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के तहत साकिब निसार डॉक्ट्रिन के जरिए नाअहल करके हंसते बसते सी पैक के साथ तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज फिर अंधेरों में फेंक दिया गया है। एक जाहिल, अनाड़ी और नातजुर्बेकार हुकूमत को बरसर इक़्तिदार ला के पूरी मईशत का इंजर बिंजर कर दिया है। जैसे आप एक कार की चाबी किसी अनाड़ी ड्राइवर को देंगे, वो कार को मंजिल पे नहीं पहुंचाएगा, वो गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा, अपना सिर भी फाड़ेगा और गाड़ी भी तोड़ फोड़ करके फेंक देगा। वही हशर इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का किया है, अपना सिर भी फड़वाया है, आज सड़कों पे धक्के खा रहा है। और हम इमरान खान साहब के मशकूर हैं। मैं थैंक यू इमरान खान कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी 2 सूबाई हुकूमतों को ज़िबा कर दिया है और अपने हाथों से अपनी 2 हुकूमतों को ख़त्म करके वो सड़कों पर आ गए हैं। इतनी बड़ी दानिशमंदी, ये वही दानिशमंदी है कि जिसके साथ मुल्क चलाया गया है। जो उन्होंने आज अपनी सियासत का हशर किया है, इसी तरह के फैसले करके मुल्क की मईशत को इस हाल पे पहुंचाया है। तो कराची के लिए हम तरजीही बुनियादों पर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर
हर उस शोबे में वसाइल फराम करेंगे जहां पर ज़रूरत होगी, इसलिए कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है और मेरी तो ज़ाती तौर पे कराची से प्यार है, चूँकि मैं भी आयशा भवानी और कैंट पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ। हमें ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि अदलिया के फैसलों में जो है वो अभी भी कुछ लाडलापन बाकी है? जब नून लीग की हुकूमत थी, फैसले ऐसे आते थे कि जनाब बिल्कुल ही निहाल हाशमी बना दिया, किसी को दलाल चौधरी बना दिया। अब एक ऐसे में 20,000 रुपए की जमानत देकर तो क्या उकसाया नहीं जा रहा लोग कि वो ऐसे अमल करें? देखिए, ये आपने जो सवाल किया ना, हो रही है माशी आपकी इंतकाम का निशाना रहे सबका। अब इमरान रियाज को भी गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तारियां हैं, उनका बुरहान। देखिए, मैं आपसे करूं, हमारी हुकूमत का ज़ीरो इंतकामी एजेंडा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई रियासत के साथ, आइन के साथ और हमारे कौमी इदारों के लिए एक साजिश का हिस्सा बनेगा तो जो इस मुल्क का कानून है वो ज़रूर हरकत में आएगा। आप सियासत करें, लेकिन कौमी इदारों के खिलाफ एक दुश्मनों की मुहिम का हिस्सा ना बने। कि अगर इस मुल्क में हमने जितनी मार्शल लॉ के खिलाफ जदोजहद की है, जितनी पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ के खिलाफ जदोजहद की है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ जदोजहद की, हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ जदोजहद की, लेकिन हमने एक फाइन लाइन कभी क्रॉस नहीं की थी। इसलिए कि जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो हमारी बका के ज़ामिन हैं। अगर हम अपने कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करेंगे और उन पर एतमाद ख़त्म करेंगे तो इस खला को फिर दहशतगर्द पूरा करेंगे, इस खला को नॉन स्टेट एक्टर्स पूरा करेंगे। तो इसलिए सियासत को सियासत के दायरे में रखना चाहिए। सियासत के ज़रिए मुल्क की बुनियादें और इदारा जाती बुनियादें, उन्हें नहीं खोखला करना चाहिए। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानून ज़रूर कार्रवाई करेगा। बहुत शुक्रिया। गिरफ्तारी के हवाले से सर बात की। कि हम इस जिम्मेदारी से राह फरार हासिल नहीं करेंगे। ये क्राइसिस हमारे लिए एक मौका फराहम करता है कि हम न सिर्फ ये कि पिछले 4 सालों में जो कोताहियाँ हुई, बल्कि 75 सालों से जो हमारे मईशत के अंदर नकाइस हैं, हम उन्हें दूर करें। चूँकि क्राइसिस एक मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होता है और इसके लिए जो इस्लाहात दरकार हैं, जो मईशत को मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करने के लिए फ़ैसले हैं, वो हम करने से नहीं चूकेंगे और कोशिश करेंगे कि इन मुश्किल हालात के अंदर जो गरीब अवाम हैं उनके मफाद को पेश नज़र रखा जाए और उन पे कम से कम बोझ इस तब्दीली का या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का उनके ऊपर आए। पाकिस्तान ने 75 साल